Friends, how are you? Today we are in history class of class 7th. We have ended our first chapter. Hope you have enjoyed that. If you have any problem in chapter first, then text your message in groups. We will revert you soon. And today we will start our second chapter. Before this, you have to do all the exercises of chapter first. And we are going to start our chapter second, that is new kings and kingdoms. New kings and kingdoms. New kings, it means how new kings comes. We have studied that there are a lot of groups where people living in a groups. So in that group there is a main member who make laws, laws for their groups. That is known as the chieftains. So in this chapter, their chiefs, the group of people, their chiefs became more powerful and they have conquered 2 or 3 groups and they have built a newly kingdom. They named their kingdom, some new names have given by them, and they have built a new kingdom. And chieftains became more powerful and he was the king of that kingdom. So in this scene we see how new kings and their kingdoms came in existence. Many new dynasties emerged after the 7th century. The major ruling dynasties in different parts of subcontinent between the 7th and 12th centuries. कई सारी जो डायनेस्टीज थी वो इमर्ज हुई, वो आगे आई कब? 7th to 12th century. 7th to 12th century. Many new kings and kingdoms emergence in 7th to 12th century. They came in history. कई सारे नए राज्य और उनके राजा अस्तित्व में आए 7th to 12th centuries में. यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे वो राजा आए, कैसे जो चिफ्टेशियंस थे कैसे वो लोग लीडिंग बने, कैसे वो लोग अपने राज्य को स्थापित किए और कैसे वो लोग आगे आए, इसमें हम देखेंगे. बिफोर दिस यू हैव टू डू ऑल स्मॉल थिंग. फॉर दैट यू हैव टू टेक अ मैप एंड इन दैट यू हैव टू लोकेट द गुजारा, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास एंड चचमानस, चौहान्स, कि what are their areas. You have to take an Indian map and you have to show, आपको दर्शाना है कि किस एरिया पे उनका रूल था. ये आपको करके इस वर्क को कंप्लीट करके on next day you have to put in your groups. The emergence of new dynasties. नई डायनेस्टीज कैसे आई, द इमर्जेंस कैसे हुआ? By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with the military support. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleswara, the great lord of the circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. So we have just seen how new kings and kingdoms come. नए राजा और जो उनके राज्य थे वो कैसे आए. तो ये जो थे ये 7th to 12th centuries के बीच में आए. जो पहले राजा थे उनके यहाँ कुछ सामंत थे या चीफ्स थे. ये क्या करते थे? राजा ने इनको एक एरिया दे दिया था, लैंड. A land of area has given to him by the kings.
उन पे इनको ये टैक्स वसूलते थे, अपनी एक सेना रखते थे, जरूरत पड़ने पे वो सेना ये जिस किंग के अंतर्गत होते थे, जिस भी किंग के अंतर्गत ये लोग होते थे, ये सपोर्ट करते थे, उस राजा को सैनिक से सपोर्ट करते थे। उनके यहाँ ये लोग टैक्स वसूलते थे, उसका एक पार्ट अपने लिए रख के, तो टैक्स जब ये लोग टैक्स वसूलते थे तो उसका एक पार्ट ये लोग रखते थे जिसमें इनके एक्सपेंडिचर होते थे एज प्लस एज इनकी जो आर्मी होती थी उसका एक्सपेंडिचर होता था। अब विद दैट एक्सपेंडिचर जो चीज़ें बचती थी उनका एक फिक्स अमाउंट था कि कितना उनको राजा के पास लेके जाना है और उसको देना है, तो उसको एज अ गिफ्ट या एज अ गिफ्ट वो लोग ले जाकर देते थे, कुछ गिफ्ट लेके जाके देते थे, ये सारी चीज़ें थी। एज वेल एज टाइम्स, जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो चिफ्स थे या समंता थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते गए। तो जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए तो इन लोगों ने अपने आप को उस एरिया का महामंडलेश्वर या महासमंतास या राजा घोषित कर दिया। उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, जिस राजा के अंतर्गत थे उससे उन लोगों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ एंड वी कांट फॉलो एनी रूल्स, वी मेक आवर रूल्स एंड वी विल फॉलो ओनली दैट रूल्स नॉट मेड बाय अदर किंग्स। In this context, the new kings and kingdoms came into existence. One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were the subordinate to the Chalukyas of Karnataka in the mid-8th century. Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called the Hiranya Garbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of the Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifices as a Kshatriya, even if he was not one by birth. इस तरह का जब हम पढ़ते हैं 7 to 12th सेंचुरी की जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह का कहाँ हमें मिलता है, एग्जाम्पल कहाँ मिलता है। तो इस तरह का सच एक एग्जाम्पल हमको देखना मिलता है राष्ट्रकूटास के बारे में जो डेक्कन में रूल करते थे। वो लोग सबऑर्डिनेट थे, वो लोग क्या थे, समंताज या चीफ थे राजा के, जो चालुक्य के राजा थे। चालुक्य राजा के, जो कर्नाटक का चालुक्य राजा था, उसके अंतर्गत राष्ट्रकूटास एक सामंत थे और धीरे धीरे वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। राष्ट्रकूटा जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने दासत्व या उनका सॉवरेन जो उनके राजा थे चालुक्य, उनको छोड़ दिया और अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम डेक्कन के अब राजा है एंड वी कांट फॉलो योर रूल। सच लाइक ऑफ अ एग्जाम्पल आल्सो वी सी इन द mid-8th century। अब दांती दुर्गा ये राष्ट्रकूटा के एक चीफ थे एंड इन्होंने चालुक्य का फेंक दिया कि हमको नहीं रहना है, चालुक्य के अंदर में हम नहीं रहेंगे, वी आर मोर पावरफुल एंड वी इस्टेब्लिश आवर ओन किंगडम, वी डोंट फॉलो एनी अदर रूलर, हमें किसी और रूलर को फॉलो नहीं करना है, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम अपने ही राजा, अपना ही राज्य चलाएंगे और अपनी बातों को मानेंगे, ना कि दूसरे के अधीन हम रहेंगे। और उन्होंने एक रिचुअल, एक सेरेमनी की जिसको नाम दिया गया हिरण्य गर्भा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, वहाँ जो ब्राह्मण थे उनके मदद से। और ये माना गया कि ये लोग अब सेक्रीफाइसर हो गए, ये लोग अब बलिदान करने योग्य हो गए, ये लोग अब क्षत्रिय हो गए, जबकि ये बर्थ से क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन इस हिरण्य गर्भा करने के बाद, इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो लोग अपने आप को क्षत्रिय के तौर पे मानने लगे। In other cases, men for enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayusaram and the Gujara Pratihara Harichandra were the Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. और इसी तरह का जो राष्ट्रकूटा और चालुक्य का एग्जाम्पल देखा, इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल और मिलता है। जैसे जो राजा थे किंग्स, ये क्या करते थे, लैंड, अ पार्ट ऑफ लैंड डोनेटेड टू समंताज और चिफ्स एज वेल एज दे डोनेट सम लैंड टू ब्राह्मण्स।
he also donate some land to the Brahmins, and at this instance seen by us कदम्बा मौर्य सरमन एंड द गुजारा प्रतिहारा हरिश्चंद्रा। ये ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने अपना ट्रेडिशंस त्याग दिया, मंदिरों में पूजा नहीं करना है, वेदों को नहीं पढ़ाना है, और इन्होंने शस्त्र उठा लिया। दे हैव टेकन देयर weapons एंड इन लोगों ने अपना खुद का राज्य स्थापित किया कर्नाटक में और राजस्थान दोनों जगहों पे। तो ये ब्राह्मण थे, कर्म, ये लोग कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कर्म छोड़ दिया अपना ब्राह्मणों का कि हम नहीं पढ़ाएंगे, किसी मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। अब हमारा कर्म क्या होगा? युद्ध लड़ना, और हम अपनी नया राज्य स्टैब्लिश करेंगे, और कोई हमें रोक सकता है तो रोक ले, हम किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, जब किंगडम्स बन गए तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? नए राज्य तो बन गए, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? उनको राज्यों को हम चलाएंगे कैसे? ये सारी चीज़ें थी, चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स में हम देखेंगे मेनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। इनमें से कई राजाओं ने हाई साउंडिंग टाइटल रखा, सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट इन ऑफ सच क्लेम्स, इस तरह के क्लेम से दे ऑफेन शेयर्ड पावर्ड विद द समंतास एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। जब नए राजा बन गए तो उनको अपना, अब सामंत थे या चिफ्टिशियंस थे, तो उन्होंने टाइटल्स को भी बड़ा किया कि अब उनको लगे कि नहीं ये वाकई राजा है, तो राजा, महाराज, अधिराज, इस तरह के टाइटल्स उन लोगों ने रखना शुरू कर दिया। और फिर जो दूसरे सामंत थे, उनके जो करीबी सामंत थे, उनसे और ब्राह्मणों से उन लोगों ने सहायता लेनी शुरू कर दी। एज वेल विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स से वो लोग सहायता लेने लगे। पीजेंट्स इसलिए चाहिए थे, लैंडलेस फार्मर, खेती तो थी उनके पास, फील्ड था, लेकिन जब तक लैंडलेस पीजेंट्स नहीं रहेंगे तो उन पे खेती करेगा कौन? और खेती नहीं करेगा तो लोग खाएंगे क्या? तो पीजेंट से मदद ली गई, एसोसिएशंस को बुलाया गया कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए, आपको हम जमीन देते हैं और आप उस पर खेती कीजिए, उसका एक टैक्स हमें दे दीजिए जमीन के बदले, और बाकी आप, जैसे अभी आप गाँव में जाएंगे तो बटाई होती है, बटाई में क्या होता है? आप जमीन अपनी दे देते हैं और वो जोता बोता है, जितनी फसल प्रोड्यूस होती है उसका 1/2 आपको दे देता है, 1/2 वो रख लेता है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि ये नया है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज होने लगी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स में रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसियंस हु वर ऑफन परस्यूटेड आर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड who asserted that he owned as the land. Revenue was also collected from the traders. So they have distributed the land to the peasants. Some properties given to some craft persons को कुछ करने के लिए कह दिया गया, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको दे दिया गया, और उनसे जो प्रोडक्शन होता था उसका एक हिस्सा लिया जाता था, या कभी कभी पूरी जितना भी जैसे अनाज कम हुआ तो उसका पूरा का पूरा वो लोग सीज कर लेते थे, केवल ईटिंग मटेरियल, उनकी लाइवलीहुड चल जाए उतना उनके पास वो लोग छोड़ देते थे। इस तरह वो अपने राज्य चलाते थे। देयर आर अ लॉट ऑफ टैक्सेस हैव पुट ऑन डाउन ऑन देम, उनके ऊपर कई सारे टैक्सेस लगाए, जिसमें उसमें एक टैक्स है 400 टैक्सेस। व्हाट इट मीन्स? The inscriptions of the Chola who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. एक inscriptions है, एक जगह लिखावट में मिला हुआ जो चोलाज ने तमिलनाडु में रूल करते थे, उन्होंने लिखा हुआ था, जिसमें 400 types of taxes they have imposed on their, अपने नागरिकों के ऊपर उन्होंने 400 तरीके के टैक्सेस लगा दिए थे। उसमें क्या क्या था? द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इज द वेटी, सबसे जो ज़्यादा
कॉमन टैक्स था वो वेटी था, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। वेटी में मतलब उनसे कैश नहीं लिया जाता था, उनको फोर्स्ड लेबर के तौर पे बिना मतलब पैसा कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको ये काम करना है। एंड द कदामाई आर लैंड रेवेन्यू, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन द थैचिंग द हाउसेज, द यूज ऑफ द लैडर टू क्लाइंब पाल्म ट्रीज, एक्सेस ऑन द सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी ईटीसी। उसमें कई तरीके के टैक्स थे, जैसे आप घर बनवा रहे हो उस पे जब छत डालते हैं तो वहाँ भी टैक्स, उस पे भी टैक्स लगाया हुआ था। पाम ट्रीज पे आप चढ़ते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया था। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या इस तरह के टैक्स आज भी वसूले जाते हैं? तो नॉट इन विलेजेस बट इन टाउन्स दैट काइंड ऑफ टैक्सेस आर टेकन। वेयर एवर यू फाइंड द पाम ट्रीज, तो इन सीजन के मौसम में उनकी टैक्स लिए जाते हैं कि इतने टैक्स आपको देने होंगे, तब इन पेड़ों से आप फल और जूस निकाल के आप मार्केट में बेच सकते हो। गांव में तो नहीं, नगर पालिका में आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है। जब आप मैप घर बनाने जाओगे तो मैप को पास कराना, उस समय भी टैक्स देना होगा। अब पर ईयर यू हैव टू पे अ काइंड ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स। वहाँ पे थैच टैक्स था, यहाँ पे हाउस टैक्स है। तो आप इस तरह के टैक्सेस हैं, बट उसका लिमिट है, जितने बड़े आप शहर में रहोगे उतना ज़्यादा वो टैक्सेस बढ़ता जाता है। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars which were in turn explained to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as the trade routes. ये जो रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज या जो टैक्सेस लिए जाते थे, वो किस लिए लिए जाते थे? वो राजा को अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उनको अपनी सेना मेंटेन करनी थी, अपना एक्सपेंडिचर मेंटेन करना था, अपने लिए फोर्ट्स बनवाने थे, महल्स बनवाने थे, घर बनवाने थे। तो इस तरह के जो टैक्स थे, इस तरह के एक्सपेंडिचर पे यूज किया जाता था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from the influential families and the positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. जो फंक्शनरीज थी, जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो लोग कौन थे? ये रिक्रूट किए जाते थे किंगडम फैमिलीज की तरफ से। एंड दे रिक्रूटेड दिस पीपल्स एंड दे आर हेरिडेटरी। एक बार अगर पिता अपॉइंट हो गया तो वो मर जाएगा तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से ये लोग टैक्स रहते थे, ये लोग टैक्स वसूलते थे। पहले ये काम जो आज के डेट में श्रीवास्तव होते हैं, ये लोग करते थे, जिनको पटवारी कहा जाता था। तो 1947 तक तो ये लोग थे, लेकिन उसके बाद से ये सर्विसेज उन्हीं को मिली, लेकिन अब ये हेरिडेटरी नहीं रह गई। अब जो लोग भी एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं उनको मिल जाता है। इसी तरह सेना के लिए भी था कि सेना भी फिक्स थी कि ये कुछ लोग हैं, यही लोग सेना में लड़ेंगे, और उन लोगों के बाद उनके लड़के, फिर उनके लड़के, इस तरह ये जो पोजीशन थी ये फिक्स थी। राजा की भी पोजीशन फिक्स थी कि राजा है, राजा के मरने के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह ये हेरिडेटरी चलता रहता था। That's all for the today. If you have any problem, then message me. I will revert you soon. Thank you. Good luck. Bye.